गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। अब लड़ेंगे चोर। બિહારનો ચર્ચાસ્પદ ઇલેક્શન એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ચૂંટણીમાં આપણને બધું જ જોવા મળ્યું. ભાઈ ભાઈની સામે લડતા જોવા મળ્યા. કોઈક વાર અહીંયા એક એવો પણ બનાવ જોવા મળ્યો કે નેતાની હત્યા કરવામાં આવી. આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે ક્યાંક ને ક્યાંક ચિત્ર સ્પષ્ટ થતું જોવા મળી રહ્યું છે. સમગ્ર બાબતે વિગતે ચર્ચા કરીશું. નમસ્કાર, હું છું ઉજ્જવલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. બિહાર ચૂંટણી વિશે જો વાત કરવામાં આવે તો બિહારમાં બે ગઠબંધન વચ્ચે ચૂંટણી હતી. એક ક્યાંક ને ક્યાંક એનડીએ અને એની સામે હતું મહાગઠબંધન. આ તમામની વાત કરવામાં આવે તો એનડીએની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક નીતિશ કુમારની પાર્ટી હતી જેડીયુ, એની સાથે સાથે બીજેપી અને બીજી એક રામવિલાસ પાસવાનની પાર્ટી હતી જેમના પુત્ર ચિરાગ પાસવાન છે. આમનો ગઠબંધન હતો અને એની સામે જો વાત કરવામાં આવે તો લાલુ પ્રસાદ યાદવની પાર્ટી એટલે કે આરજેડી, તેમના તરફથી તેમના પુત્ર લડી રહ્યા હતા તેજસ્વી યાદવ. એમની સામે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું પણ જોવા મળ્યું કે આ ઇલેક્શનની વચ્ચે તેજ પ્રતાપ યાદવ પર ક્યાંક ને ક્યાંક એમને પાર્ટીમાંથી નીકાળી દેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ પણ પોતે ચૂંટણી લડતા જોવા મળ્યા, પોતાની પાર્ટી બનાવીને ચૂંટણી લડતા જોવા મળ્યા. પરંતુ તેમનું ક્યાંક ને ક્યાંક હાલ એવું લાગતું નથી કે તેમની પાર્ટીનું કંઈ થાય. પરંતુ આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થતું જોવા મળી રહ્યું છે અને એનડીએ ગઠબંધન કે જે બીજેપી સાથે નીતિશ કુમાર યાદવનું ગઠબંધન હતું એ આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક સ્પષ્ટ બહુમતી એમની સાથે જોવા મળી રહી છે. તેની સામે જો વાત કરવામાં આવે તો મહાગઠબંધન હાલ ક્યાંક ને ક્યાંક એમનો સુપડા સાફ થતો હોય એવું જોવા મળી રહ્યું છે. આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે કોંગ્રેસ અને ભાજપના નેતાઓ પણ એકબીજા ઉપર આક્ષેપ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ દ્વારા એવા આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે કે જે વાત રાહુલ ગાંધી દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હતી, બહાર પાડવામાં આવી હતી કે ક્યાંક ને ક્યાંક વોટ ચોરી થઈ રહી છે. આ ચિત્ર સ્પષ્ટ એવું બતાવી રહ્યું છે કે વોટ ચોરી થઈ રહી છે એવું કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ આક્ષેપોની વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ અને જે આરજેડી છે તેમના કાર્યાલયોમાં હવે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉત્સવનો માહોલ પણ ઊભો થઈ ગયો છે. તમામ કાર્યકર્તાઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઉત્સવ જોવા મળી રહ્યું છે. મીઠાઈઓ વેચવામાં આવી રહી છે. બીજી જો વાત કરવામાં આવે તો પોસ્ટર વિવાદ પણ હાલ ચાલી રહ્યો છે અને પોસ્ટરો હવે જોવા મળી રહ્યા છે નીતિશ કુમાર યાદવના અને એવા પોસ્ટરો જોવા મળી રહ્યા છે કે ટાઈગર અભી જિંદા હૈ. આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે જો વાત કરવામાં આવે તો એનડીએ ગઠબંધન હતું બીજેપીનું અને નીતિશ કુમાર યાદવનું તે હાલ આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક શરૂઆતની જો વાત કરવામાં આવે તો 180 થી પણ વધારે સીટ એટલે કે બહુમતીની જો વાત કરવામાં આવે તો બહુમતી માત્ર ને માત્ર જેની પણ 122 સીટ હોય એ બહુમતી પાર કરી જાય છે અને જે બિહારમાં ઇલેક્શન જીતી જાય છે એ બહુમતીના આંકડાથી પણ બહુ જ આગળ એનડીએ હાલ જોવા મળી રહ્યું છે. આ તમામ વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક જે નીતિશ કુમાર યાદવની પાર્ટી છે એટલે કે જેડીયુ એ સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને પણ અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક બહાર નીકળી રહી છે. આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, ભાજપમાં કેવો માહોલ છે એના पर नजर करिए. देखिए, जो हम तख्ती लेकर खड़े हैं भारत की भावना है. इस पर लिखा कि हम 14 साल से मोदी जी जो चाहते हैं वही होता है. चुनाव का कोई मतलब नहीं है. मोदी जी को, अमित शाह को और चुनाव को पता है बिहार में कौन जीतेगा कौन हारेगा. पूरा हरियाणा एग्जिट पोल में हम जीते थे लेकिन हम हार गए. अब पूरे एग्जिट पोल में मोदी जी जीत रहे हैं, एनडीए जीत रहा है. परिणाम मोदी जी को पता है, किसी को नहीं पता है. सही मायने में चुनाव का मतलब नहीं है. मैं समझता हूं राहुल गांधी ने जब से वोट चोरो गद्दी छोड़ो नारा दिया पकड़ लिया है. बीजेपी की पोल खोल दी, बीजेपी घबराई हुई है. मोदी जी फंस गए हैं. शतरंज का खेल रहे छह और मात का. अगर वो जीतते हैं तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, चुनाव लूट रहा है. अगर राहुल गांधी वो हार जाते हैं तो फिर राहुल गांधी को झूठा ठाने की बात करेंगे कि राहुल गांधी वोट चोरो गद्दी जो वोट चोरी की बात करते वो झूठ बोल रहे थे. कहने के मैं समझता हूं सरकार फंस गई है. लेकिन पूरा भारत राहुल गांधी के साथ करा. भारत जोड़ो यात्रा में, वोट चोर यात्रा में भारत चाहता है कि मोदी जी बाय बाय, अब जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए हमारा पीछा. बम दिल्ली तक आ गए हैं. आप फेलियर हैं, आपकी सरकार फेलियर है, आपकी एजेंसी फेलियर है. हमें तो डर था कि बड़े बड़े नेता अमित शाह, मोदी जी, राहुल जी दिल्ली में रहते हैं. ये किसके लिए बम आए थे समझ में नहीं आ रहा. मारे गए आम आदमी, मोदी जी भूटान घूम रहे हैं. सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और जवाब सरकार को देने पड़ेंगे. चुनाव का कोई मतलब नहीं है. मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग जो तय करेगा रिजल्ट वही आएगा. यही हम कहना चाहते हैं. लगता कुछ नहीं है. हरियाणा का रिजल्ट भी आया था, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए. अब एग्जिट पोल बिहार में भी आए हैं, मुझे लगता है ये भी फेल हो जाएंगे. या सही होंगे तो राहुल गांधी सही साबित हो जाएंगे कि वोट चोरों के सबूत के साथ बता रहा भाई. ब्राजील की एक महिला 200 से वोट डाल रही है, घर में 500 वोट हैं, 500 आदमियों के पिता का नाम एक है.
इनका सवालों का जवाब कौन देगा? ये तो चुनाव आयोग की लिस्ट में है और चुनाव आयोग खामोश है। बीजेपी उछल उछल कर बोल रही है, बचा रही है। अब तय तो हो जाएगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, चुनाव का मतलब नहीं है। चुनाव का बहिष्कार करो। जब तक मोदी जी जिंदा हैं उन्हीं को रहने दो। भारत का पैसा बचाओ, भारत का समय बचाओ। जो पैसा बचेगा गरीब लोगों के लिए लगाओ, सड़क और रोजगार के लिए लगाओ। यही कहना चाहेंगे। हम सभी राहुल प्रियंका गांधी सेना के लोग हैं और इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है। मोदी जी को जान लेना चाहिए। ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे। दोनों के जो रुझान आ रहे हैं वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं, उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है, वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशी को भी बधाई। माध्यम से भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं, हमारे पास अब भाजपा नंबर 1 का दल वहां बन कर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे, तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं, ये उन सबके सोचने का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधारी करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कस है। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। एक जगह कटना चाहिए। वो व्यक्ति जो यहाँ का नहीं है, भारत का घुसपैठ कर आया है, नाम कटना ही चाहिए। क्यों नहीं कटेगा भाई? और जो व्यक्ति है जिंदा, जिसका जो कहीं का रहने वाला है, उसका नाम कट ही नहीं सकता। ये गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना नहीं चाहिए। सांसद हैं, समझना चाहिए उनको। सर, कल ईडी ने एक कार्रवाई की, अराउंड मोर देन 60 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की सर चैतन्य बघेल की। उस पर एक ट्वीट आया बघेल जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी जब्त कर लो, हरदेव जब्त कर लो, तमनार जब्त कर लो और बहुत सारी चीजें जब्त कर लो। नहीं, वो जो वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। उनके परिवार का मामला है और ईडी का मामला है, राज्य सरकार का भी नहीं है। मैं कुछ कह भी नहीं सकता इसमें, परंतु इतना मैं सोचता हूं कि ईडी जैसी संस्था किसी के पारंपरिक व्यक्तिगत पुश्तैनी जमीन का 1 इंच भी नहीं अटैच कर सकती है। ये अधिकार ईडी को नहीं है। ईडी ने जो किया होगा वह ऊपरी कमाई का, घूस की कमाई का जैसे कि आरोप है, वैसा ही हुआ होगा। सर, डीजी कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है सर, 28, 29 और 30 को डीजीपी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में है। ये देश के विभिन्न प्रांतों में होता रहा है, पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। देश के
सभी राज्यों से डीजीपी आएंगे और देश में पुलिसिंग की व्यवस्था कैसे अच्छी हो इस पर काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी लगातार 3 दिनों तक यहाँ रहने वाले और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही गंभीरता से होता है। आप देखेंगे पूरे देश में पुलिसिंग की व्यवस्था दुरुस्त हुई है पहले के बनिस्बत अब। बिहार में 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की आने वाली है। बिहार की जनता ने जंगल राज को टाटा बाय बाय कहा है और सुशासन की सरकार को, विकास की सरकार को चुना है। जिस तरीके से बिहार की जनता के प्रति ये सोचा गया कि कुछ भी बोल दो ये मान लेंगे और हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, उसको भी जनता ने परख लिया। कहा कि ये आज तक कुछ न कर पाए, अब हर घर में 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। इनका ऐसा वादा भी गलत है। यह निर्णय किया है बिहार की जनता ने। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका। એટલે કે આ બિહાર ઇલેક્શન ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચામાં હતું, કારણ કે આની અંદર બધું જ જોવા મળ્યું, મારામારી પણ જોવા મળી, આમને સામને પણ લોકો જોવા મળ્યા, બે પાર્ટીઓ વચ્ચે પણ મારામારી જોવા મળી, એક નેતાની પણ હત્યા કરવામાં આવી। પરંતુ આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે મતગણતરી ચાલી રહી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે એનડીએની સરકાર બની રહી છે। આ સમગ્ર બાબતે આપનો શું અભિપ્રાય છે અમને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવશો। અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।